Good morning, everyone. Uh, it's 7 a.m. and I woke up, of course, 5:30 a.m. Uh, Actually, I woke up at 4 a.m. but I started my day at 5:30. So I've done all the grooming work and all the grooming part of my day. Uh, I'll start with some basic learning work. So let's start with that and we'll find a perfect location and then we'll talk. This is actually crazy. I was reading my book, uh, and I'm on the chapter 4, Compounding and Compounding. It's about Warren Buffett. It's about compounding actually, and the biggest investor in the world is Warren Buffett, as you all know. So I just saw a fact that he's investing till since he was a child, he was a teen. So that's why his net worth is $84.2 billion, and 81.5 billion dollars of his net worth came after he is in his mid 60s. That's actually crazy. But what, what is what is crazier than that is if Jim Simpson, he's another investor, started investing from the age Warren Buffett started, uh, and Jim Simpson has one of the craziest annual returns of all time, 66% annual returns. So if he started at the age when Warren Buffett started, his net worth would be 63 quintillion 900 quadrillion 781 trillion 780 billion 748,160,000 dollars, and that's actually nuts. That's a it's billion times more than that of Elon Musk's. Elon Musk is at no, it is way more than that. 10 million times. I mean, Elon Musk is at $1 trillion. So you can count it. So that's actually crazy. And that is the power of compounding. Right, free clips, sound effects, music to use in your videos, whatever. And the company has been generating profit from day one. Profit. It will take a little bit more effort in the initial stages. मैंने अभी जस्ट अपना लर्निंग बुक इन्वेस्ट आ और उसके ऊपर से मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं बुक पढ़ रहा था तो मेरा बताया था वो एक क्रेजी फैक्ट वो एक्चुअली मुझे खुद माइंड ब्लोइंग लगा हालांकि वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी क्योंकि ऐसा हुआ नहीं था और बेसिकली वो एक इमेजिनरी ही था इमेजिनरी फैक्ट के हिसाब से तो आई गेस पॉसिबल था मैंने चेक नहीं किया फैक्ट चेक नहीं किया लेकिन पॉसिबल हो सकता है कंपाउंडिंग इज सो पावरफुल एंड वो चैप्टर भी बताओ ये बुक का वो कंपाउंडिंग के बारे में था तो इसके अंदर ऑफ कोर्स कंपाउंडिंग सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें इन्वेस्टिंग और इन्वेस्टिंग सबसे बड़ा फंड वॉरेन बफेट which is not someone who got extraordinary returns. It was James Simpson who got extraordinary uh, results and returns. He got 66% annual returns, and actually that is crazy because even Warren Buffett got 22%. But Warren Buffett and before what I was saying, um, Warren Buffett is worth um, $84.5 billion or 84.2, and Jim Simpson was worth I guess $21 billion. And this is because Warren Buffett started earlier than Jim Simpson. So can you say compounding is all about time.
what I learned from the chapter. Compounding is all about time and consistency. And I always yesterday मैंने एक चीज देखी और मुझे इतनी ज्यादा मैंने ये देखा मैं मुझे रात में सो नहीं पाया पूरी थी कि हमारे पास सिर्फ एक लाइफ है वी हैव ओनली वन लाइफ सो व्हाई डोंट वी रन लाइक वी आर ऑन फायर towards our wildest dreams and that just changed my mind and I'm always obsessed with my work. I watched 3 videos today for learning editing and मैंने पूरी नहीं देखी वो सिटी में एडिटिंग की भी थी 4 घंटे लगी और मेरे पास 4 घंटे नहीं थे अभी मुझे हॉस्पिटल जाने अभी मम्मी का तो वो उसके बारे में बात मत करेंगे लेकिन एडिटिंग की वीडियो उसके साथ हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड और साथ ही साथ जो भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट सिस्टम्स के बारे में जो एक्चुअली में करेगा और वो सिस्टम वाली वीडियो मुझे अच्छी लगी बट इट वाज नॉट दैट इफेक्टिव फॉर मी बिकॉज currently doing I'm doing the same thing that was taught in that video from a long time. It was not something that I learned, but it was just for external learning मिलती है कई बार चीजें देख के चाहे पता होती तब भी अभी मैं क्या कर रहा हूँ अभी मैं अपना एफ डी मीडिया के जिसको मैं नाम चेंज करके AMD मीडिया करने वाला हूँ उसको मैं लाइक उसके लिए थोड़ा सर्विस मॉडल पे ध्यान दे रहा था क्योंकि कुछ कंफ्यूजन उससे रिलेटेड मुझे और मुझे सर्विस मॉडल थोड़ा सिंप्लीफाई करना था बिकॉज एज एन वो एजेंसी के तौर पे ऐसा नहीं कर सकते सिर्फ दो बंदे नहीं कर सकते इतना सारा काम जो पहले सोचा था तो मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ चीज़ों एंड या तो उसका मॉडल बना रहा हूँ और हाँ और भी चीज़ें सेटअप करने के लिए जैसे टूल हो गए एंड किस तरह कंटेंट रिसर्च ये सारी चीज़ें मैं अभी कर रहा हूँ एमडीवीएस से रिगार्डिंग अभी टाइम टाइम हुआ है 11 बजे 11 बज चुके हैं तो ऑलमोस्ट 12 बजे तक हम लोग जाएंगे हॉस्पिटल और अब आपको मैं हॉस्पिटल में ही मिलूंगा वहाँ पे एक अच्छी वहाँ पे अच्छा गार्डन है तो वहाँ पे अच्छे से रिकॉर्डिंग कर लेंगे अच्छा वीडियो अगर आपको पसंद आएगी ना अब तक और जितना भी बातें कर रहा था वो भी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ कमेंट प्यारा सा या जैसा कमेंट करना प्लीज डाल देना क्योंकि कमेंट मुझे आपका कमेंट मुझे बताएगा कि मैं क्या सही कर रहा हूँ क्या गलत कर रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए आपकी क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है और मेरे एफर्ट्स भी मैटर प्लीज सब्सक्राइब एंड रिस्पॉन्ड टू मी। अच्छा मैं ना कह रहा था कि मैं अपनी वेबसाइट भी बनाने पे फोकस करूँगा एंड वो वेबसाइट पहले तो मैं सोच रहा हूँ मुझे पहले तो ये नहीं समझ आ रहा था कि मैं किस चीज़ पर वेबसाइट बनाऊँ लाइक अपने पर्सनली ब्लॉग पेज की तरह या फिर अपने AMD मीडिया तो वो फिगर आउट करने के बाद सबसे पहले आप ही लोगों को बताऊँगा तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आई एम हियर मैं यहाँ हूँ हॉस्पिटल में और मम्मी अभी कुछ पता कर रहे हैं मेडिसिन का और मैं यहाँ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ फीमेल डॉक्टर की वो अंदर हैं मम्मी कमरे में तो मैं बाहर आ गई रिकॉर्डिंग करने। अच्छा मैं कह रहा हूँ कि अभी हम घर जाएंगे तो काफ़ी सारे काम हमें करने हैं तो उनमें काफ़ी सारे मेंशन काम हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं इसमें आवाज़ नहीं आ रही लेकिन कि हॉस्पिटल ऑफ कोर्स काफ़ी सारे हम काम करने हैं जैसे MD मीडिया की प्लानिंग मैं कर चुका हूँ और ज़्यादा नहीं करूँगा मतलब और ज़्यादा वो मीटिंग है 8 बजे ठीक है आज 8 बजे मीटिंग रखूँगा अपने पार्टनर के साथ और सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा फाइनलाइज़ कर दूँगा सारी चीज़ें एंड सेकेंड डे आज हाँ मैं वॉक और वर्कआउट वगैरह सारी चीज़ें कर सकता हूँ तो देखते हैं क्या करते हैं। अभी घर आया हूँ और थोड़ा रेस्ट करके क्योंकि अभी 2 बजे मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा और उसके बाद हम लोग ट्यूशन पढ़ाने जाएंगे तो अभी थोड़ा रेस्ट करने मतलब प्रॉपर रेस्ट आई मीन या तो थोड़ी देर एक नैप ले लूँगा या थोड़ी देर बस बैठ रहूँगा ऐसे ही काम तो मैं अभी नहीं करने वाला 6 बजे के बाद ही वो जो काम होगा। I'm actually going to the park on my way and let's move to the park.
मैं अभी हूँ पार्क में ही और मैं वर्कआउट करूँगा अपना, लेकिन कुछ ही वर्कआउट करूँगा, जैसे हैंगिंग लेग रेजेस हो गए और हैंगिंग बग हो गया, ऐसे ही वर्कआउट करूँगा और कुछ घर पे करूँगा। तो अभी मैं मतलब मेरी पड़ोस वाली आंटी भी इसी पार्क में आ रखी थी। उनके बच्चे ना थोड़े से मतलब थोड़े से मतलब होते हैं, उनको कई बार ज़रूरत होती है साइकोलॉजिस्ट की, वो चलो उनकी बात हम नहीं करेंगे। मैं गुस्से की प्रॉब्लम और ये ना बहुत कॉमन है आजकल के बच्चों में, और मेरे अंदर भी है गुस्से की प्रॉब्लम। तो उसको ठीक करने के लिए ना मेरे सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है आपका मेडिटेशन। जितनी मेडिटेशन और जितनी शांति से बैठ सकते हैं ना, वो बेस्ट है आपके लिए एंड वो मस्ट है आपके लिए। अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, मेडिटेशन करो, फिर अपने काम पे ध्यान दो, डोंट स्पीक टू मच। बस ये मेरे लिए सबसे गोल्डन रूल्स हैं जो मैं गुस्सा कंट्रोल करने के लिए करता हूँ। और एक्चुअली मैं अभी आपको लाइट काफ़ी ज़्यादा अजीब सी दिख रही होगी, क्योंकि मैं यहाँ ऊपर हूँ, काफ़ी ज़्यादा ऊपर, मतलब ज़्यादा ऊपर भी नहीं है, लेकिन इट्स ओके। लेट अस स्टार्ट अ वर्कआउट। हैंगिंग लेग रेजेस से स्टार्ट करेंगे। मैं पहले नीचे उतर जाता हूँ। तो शुरू करने से पहले कुछ मतलब लोग आए थे, उनको भी अपना वर्कआउट करना था, तो मैंने वो कह रहे थे रिकॉर्डिंग कर लो आप, कोई बात नहीं, लेकिन चलो हम अपना शुरू करते हैं। मैं अपना कैमरा सेटअप कर देता हूँ। तो इस क्लिप में मुझे जो वर्कआउट की एक्सरसाइज करनी थी वो है हैंगिंग लेग रेजेस, और उसके मुझे 12 रेप्स इनटू 3 सेट्स करने हैं। फॉर्म आप देख सकते हो इतनी परफेक्ट नहीं है, थोड़ी सी डिफॉर्म्ड है, बट मैं ट्राई कर रहा था कि फॉर्म सही रखूँ और ग्रिप सही बना पाऊँ। दूसरे एंगल में एक बार होगी मैंने दूसरी तरह की ग्रिप पकड़ी है और इसमें मैंने थोड़ा सही से कर पाया था। सेकंड मेरी एक्सरसाइज थी बग, और उसमें मैं ढंग से नहीं। हाँ, मैंने अपना वर्कआउट कर लिया। एक्चुअली आप देख सकते हो कि मैंने अपना जो हैंगिंग बग होता है वो काफ़ी बुरी तरह फेल किया। नाउ हेड बैक टू होम। काम हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, और इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ यहीं पे, ताकि ज़्यादा लंबी ना हो जाए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली लव यू गाइस, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो।